Hello students and welcome to the second lecture of chemical reactions and equations. I hope you have already gone through the first lecture of the series. In case you haven't, I would advise you to please go through the first lecture first before starting off with this lecture. In the last lecture we saw that all chemical reactions can be broadly classified into four different types, and these were combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reactions. Out of these four categories, we had already covered combination and decomposition reaction in the last lecture. So in today's series, we will first look at displacement and double displacement reactions and then look at some other form of classifications of reactions. तो combination decomposition हमने last lecture में किया था. So let's start with other two reactions which are displacement and double displacement. So first we will start off with displacement reactions. Now, reactions in which a more reactive substance or element displaces another from its compound is called displacement reaction. इन रिएक्शन में क्या हो रहा है? जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर रहा है, राइट? नाउ टू मेक दिस थिंग इवन मोर क्लियरर, लेट्स लुक एट दिस एनिमेशन. So, this is what a typical displacement reaction looks like. Basically, an element over here displaces a less reactive element from this compound AB to form a new compound CB, and we get the original element which was present in the original compound back. Clear? If I were to represent it as an equation, वो ऐसे लगेगी C प्लस AB. C और AB रिएक्ट कर रहे हैं एंड C इज मोर रिएक्टिव देन A. तो C क्या करेगा? A को डिस्प्लेस कर देगा इस कंपाउंड में से एंड विल फॉर्म CB. बेसिकली C ने A की जगह ले ली, C ने A को डिस्प्लेस कर दिया एंड वी गेट बैक A. सिंपल तरीका याद रखने का, अगर मैं दो चीज़ों की बात करता हूं या लेट्स से दो एंटिटी की बात करता हूं, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंटिटी है दैट विल रिप्लेस अ वीकर एंटिटी. जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी हुई? वो एंटिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जो ज़्यादा रिएक्टिव है. तो ज़्यादा रिएक्टिव एंटिटी कम रिएक्टिव एंटिटी को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगी. सो दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इज all about. Okay? Important point कि more reactive element less reactive element को उसके compound में से displace करेगा. Let's look at an example of displacement reaction to make sure that this concept is clear. और हम लोग स्टडी करेंगे displacement of copper by iron. Now, copper sulfate जो salt है वो ब्लू कलर का होता है. कोई भी सॉल्ट कॉपर का देखोगे, या मोस्ट ऑफ द सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट आर ब्लू इन कलर. सो व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, it will displace copper from copper sulfate. Iron will displace copper from copper sulfate to form a green colored ferrous sulfate solution. ठीक है? तो ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया एंड इट फॉर्म्ड अ ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन. और जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ वो क्या करेगा? वो आयरन नेल के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, राइट?
So this copper gets deposited on iron nail, as a result of which the iron nail turns brown in color. तो अगर मेरे को उसको पिक्टोरियली दिखाना है तो इनिशियली ये मैंने एक सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है विच इज ब्लू इन कलर, और उसके अंदर एक फ्रेश नॉन रस्टेड आयरन नेल को डिप कर दिया. आयरन नेल शुरू में इसका कलर शाइनी सिल्वरिश होगा, राइट. अगर रस्टेड नहीं है तो आयरन शाइनी सिल्वर कलर का होता है. नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम iron will start displacing copper from copper sulfate solution, as a result of which जो ferrous sulfate फॉर्म हो रहा है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन. तो द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल टर्न फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, और जो कॉपर आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो गया, बिकॉज ऑफ विच दिस आयरन नेल बिकम्स ब्राउन इन कलर. ओके, सो इंपॉर्टेंट है कि कलर चेंज क्या हो रहा है वो आपको पता हो, बिकॉज इन एग्जाम you may be given observation and may be asked to write the chemical reaction. So you should know that in this displacement reaction, a blue colored copper sulfate solution turns green due to formation of copper sulfate. And the reason why this reaction takes place is that iron is more reactive than copper. Therefore it is able to displace it. आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है. कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. मीनिंग अगर मैं टेस्ट ट्यूब में, ओरिजिनल टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बजाय फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेता, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेता, और उसमें कॉपर वायर्स डिप कर देता, तो कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करता. रिएक्शन क्यों नहीं होता? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. तो क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो इट विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. सो नो रिएक्शन वुड हैव टेकन प्लेस. क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर इट कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट या फ्रॉम इट्स कंपाउंड. द अदर वे अराउंड या रिवर्स पॉसिबल नहीं है. क्लियर? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी विल अगेन टच when we start chapter number 3, which is metals and non-metals, and there we will look at the entire reactivity series of metal, and we will learn which metal can replace which metal. Okay, so for as of now, just remember, a more reactive metal will displace a less reactive metal from its compound, and the reverse reaction is not possible. So now we will look at the fourth and the final category of reaction, and that is double displacement reactions. अभी तक के तीनों रिएक्शंस आपको क्लियर है? कहीं पर भी डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी. ओके ओके, सो लेट्स लुक एट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. सो व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नाउ रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स react by exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions. ठीक, important points. Reaction takes place by exchange of ions. Exchange of ions हो रहा है and we get two new compounds. Let's look at this short animation to get this concept clearer. Now we have two compounds, one CD and the second compound is AB. Now what is happening is that C and A exchange their positions. C और A ने अपनी positions exchange कर ली है and we get two new compounds. So this is what double displacement reaction is all about. So क्या हुआ था? ये कंपाउंड CD था, ये AB, तो C रिप्लेसेस A टू फॉर्म CB एंड A रिप्लेसेस C टू फॉर्म AD. ओके, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ C और A के बीच में, और हमें दो न्यू कंपाउंड मिल गए CB और AD. सो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था उसके कंपाउंड में से। तो जो चीज रिएक्ट हो रही थी उसमें से एक एलिमेंट था और एक कंपाउंड था। यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड हैं और दोनों एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज हो रही है। ओके, क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंफ्यूज मत करें। क्लियर है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट में केवल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट है। नाउ वी विल लुक एट एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The example that we are looking at is the reaction between barium chloride and sodium sulfate. बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशंस के बीच के रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। Now, when a solution of barium chloride is mixed with a solution of sodium sulfate, a white colored precipitate or a white colored insoluble compound of barium sulfate is formed along with formation of sodium chloride. तो रिएक्ट क्या हो रहा है, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, और फॉर्म क्या हो रहा है, बैरियम सल्फेट, यानी बैरियम सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, और सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम ने बैरियम को रिप्लेस कर लिया। तो बैरियम और सोडियम आपस में अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर रहे हैं। वी विल लुक एट द केमिकल रिएक्शन और द केमिकल इक्वेशन नाउ। नाउ बैरियम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप एज कैल्शियम। तो जस्ट लाइक कैल्शियम, बैरियम की वैलेंसी भी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया BaCl2। आई विल अगेन एडवाइस यू कि सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की वैलेंसीज और सारे आयंस, स्पेशली पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसीज को आप याद कर लें, लर्न देम बाय हार्ट, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू राइट द फॉर्मूला very fast. Otherwise you will struggle to write the formula and you may make mistakes. ठीक है? तो बैरियम क्लोराइड, बैरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, दोनों को क्रॉस किया तो वी गेट द फॉर्मूला BaCl2। सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, वैलेंसी क्रॉस करा, वी गेट द फॉर्मूला Na2SO4। सो BaCl2 रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट। ठीक है? अब देखो कंपाउंड क्या बन रहा है, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो क्या हो रहा है, बैरियम इज टेकिंग द पोजीशन ऑफ सोडियम एंड सोडियम टेक्स द पोजीशन ऑफ बैरियम। तो एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ बैरियम और सोडियम के बीच में, एंड वी गेट 2 न्यू कंपाउंड्स, बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये जो बैरियम सल्फेट है ये वाटर में इनसॉल्युबल है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और इस चीज को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस प्रेसिपिटेट का कलर है व्हाइट। सो दैट्स व्हाई वी से अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। और ये डाउन एरो है ये बेसिकली दिखाता है प्रेसिपिटेशन। ओके, अप एरो क्या दिखा रहा था, गैस या वेपर, और डाउन एरो क्या दिखा रहा है, प्रेसिपिटेशन। सो दिस इज व्हाट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल अबाउट। I hope these 4 classes of reactions are clear to you. We learned combination, decomposition, displacement and double displacement. Now, as I mentioned in the first lecture, there are other ways of classifying chemical reactions. Now, one of the common ways is based on energy change. ये जो क्लासिफिकेशन था अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो 4 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफिकेशन था, वो बेसिकली था इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी चेंज, कि केमिकल रिएक्शन के अंदर किस तरह का एनर्जी चेंज हो रहा है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज 2 तरह के रिएक्शंस पॉसिबल हैं, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक।
ओके, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है आउट, थर्मल हीट या एनर्जी, तो एनर्जी आउट यानी एनर्जी गिवन आउट इज नोन एज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एनर्जी गिवन इन यानी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Now let's look at exothermic reaction to understand it in better. Exothermic reactions होते क्या हैं? वो reactions in which energy is given out or evolved in the form of heat or light or sound are known as exothermic reaction. Energy given out का मतलब क्या हुआ कि जो ये एनर्जी सराउंडिंग को दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीज बर्न करती है तो चारों तरफ गर्मी फैल जाती है, राइट, और हमें लाइट भी मिलती है, विच आर बोथ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग आर कॉल्ड exothermic reactions. Or the energy which is given out can be in the form of heat, light, sound or maybe any other form which is possible. But generally जब हम chemistry में exothermic reactions की बात कर रहे हैं तो we talk in terms of heat. Okay? So exothermic reactions are those reactions in which heat is given out to the surrounding. ये सर्कल जो है एक तरीके से ये आपको बाउंड्री बता रहा है कि ये मेरा बाउंड्री है जो सेपरेट कर रहा है सराउंडिंग और रिएक्टिंग मिक्सचर को। तो एनर्जी इज बीइंग गिवन आउट टू द सराउंडिंग। ओके, सो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा इज इवॉल्व्ड और गिवन आउट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम सबने पढ़ा हुआ बायोलॉजी के अंदर। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, राइट। तो क्या हो रहा है? फूड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी के फॉर्म में, मतलब एनर्जी इज बीइंग गिवन आउट। तो अगर एनर्जी इज बीइंग गिवन आउट तो क्या रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक। सिंपल है। अरे रेस्पिरेशन में होता क्या है? रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन ब्लड। हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, तो डाइजेशन के बाद फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड which is exhaled out, water and energy in the form of ATP. ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। एनर्जी is formed in the is created in the form of ATP, adenosine triphosphate. So what is happening during respiration is that glucose molecules combine with oxygen in blood to form carbon dioxide and water. And importantly, the most important part, in this process, large amount of energy is also produced. And therefore, this reaction is known as exothermic reaction. Important चीज क्या है कि large amount of energy is produced, therefore reaction is exothermic. और यही एनर्जी तो हमें काम करने की शक्ति देती है। We are able to run, walk, talk, lift things. किस वजह से? बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो रिमेंबर, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अनदर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कैंडल। जब हम कैंडल बर्न कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें? वी आर गेटिंग लाइट। और अगर हम अपना हाथ को उस कैंडल के पास रखेंगे तो वी फील वार्मथ, यानी हीट भी सराउंडिंग को
मिल रही है, राइट। तो हमने क्या देखा था, हर रिएक्शन जिसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है सराउंडिंग को एनर्जी मिल रही है, वो कौन से रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक। सो बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ गैस स्टोव्स इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ वुड, इनफैक्ट कोई भी कंबशन रिएक्शन हो जिसमें कुछ चीज बर्न हो रही हो, क्रैकर्स हो, आपका फ्यूल हो, वुड हो, पेपर हो, कैंडल्स हो, गैस स्टोव हो, all are exothermic reaction. So remember, all combustion reactions are exothermic reactions. तो clear exothermic reaction, एक ही पॉइंट याद रखो, energy is given out either in the form of heat or light. Okay. मुझे लगता है आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो एज आई टोल्ड यू इन बिगिनिंग, यू कैन मैसेज मी, drop me a message. Now we will look at endothermic reaction. Endothermic reaction is basically opposite of exothermic reaction. तो अगर exothermic reaction में energy was being given to the surrounding, endothermic reaction में energy is absorbed from the surrounding. और this energy can again be in the form of heat or light. ठीक है? So all those reactions, all those changes in which energy is absorbed from the surrounding are called endothermic reactions. सबसे कॉमन एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब तक आइस क्यूब फ्रिज के अंदर है वो मेल्ट नहीं करता है। जैसे ही हम आइस क्यूब को फ्रिज से निकाल के बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक बार हीट को एब्जॉर्ब किया तो ये हीट हेल्प्स टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसके कारण से आइस मेल्ट होकर वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स, क्या हो रहा है, क्या ऐसे ही वाटर वेपर बन जाता है? नहीं। अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वो इवेपोरेट होता है, या वाटर के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेशन या कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हीट। इट लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट and gets converted into vapors. So evaporation and boiling are again example of endothermic reaction, right? तो अगर ये एंडोथर्मिक है तो उसका अपोजिट क्या हुआ, लिक्विड टू सॉलिड यानी फ्रीजिंग, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। कन्वर्शन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड यानी कंडेंसेशन, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, राइट? अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसका रिवर्स प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, कोई एंडोथर्मिक है तो उसका रिवर्स प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। तो मेल्टिंग इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस। नाउ आप सब लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे हो क्लास 3rd से, हो सकता है क्लास 2nd से, और सोचते हो ये फोटोसिंथेसिस कब हमारा पीछा छोड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फोटोसिंथेसिस आप 10th में भी पढ़ोगे। नाउ एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, वी ओनली नीड टू रिमेंबर कि फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट मेक फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट इज इट पॉसिबल विदाउट सनलाइट? No, photosynthesis is not possible without sunlight. तो ये green plants, ये green leaves are taking energy from sunlight. They're absorbing energy in the form of light and making food. So, if I were to talk chemically, carbon dioxide plus water in presence of sunlight gives me glucose, which is C6H12O6 plus oxygen. तो मैंने यहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा है,
because I didn't want to confuse you. But most importantly, you need to remember कि photosynthesis के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन by absorbing light energy, by absorbing light from the sunlight. Therefore, it's an example of endothermic reaction. Okay? Clear? Good. Another example of endothermic reaction, decomposition reaction. जब हमने decomposition reactions पढ़ा था, so there I mentioned that all decomposition reactions are endothermic reactions. और हमने 3 different types of decomposition reactions देखे थे, thermal, photolytic and electrolytic. एक में हीट के फॉर्म में एनर्जी यूज कर रहा था, एक में लाइट के फॉर्म में, एक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे थे. तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, all reactions in which a compound is broken into simpler elements require energy, and therefore all decomposition reactions are endothermic reactions. Clear hai? Because now we have reached end of endothermic reactions, and in fact we have finished classification of reactions based on energy. एनर्जी के बेसिस पे हमने देखे थे 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक में एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग, एंडोथर्मिक में एनर्जी इज टेकन इन फ्रॉम द सराउंडिंग. एंड वी लुक्ड एट some real life examples, some real life processes like respiration and photosynthesis and combustion, and classified them as exothermic or endothermic. Very important कि आप ये examples याद रखो, because these things are asked in examinations. Concept याद होगा तो कोई भी example पूछे आपसे, कोई भी reaction पूछे, कोई भी change पूछे कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, यू शुड बी एबल टू आंसर. वन मोर थिंग, जो हमने पहले 4 क्लासिफिकेशन देखे थे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे. व्हाट आई मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि अगर कोई रिएक्शन कॉम्बिनेशन है तो डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता. राइट? सिमिलरली एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. अगर कोई एक्सोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक नहीं हो सकता, एंडोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता. बट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी ईदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ईदर बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. सिमिलरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी ईदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ठीक है? तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विद ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ऑफ reactions into 4 categories. Now let's look at precipitation reaction. अब precipitation reaction हमने briefly touch किया था precipitation in one of the examples of double displacement reactions. तो एक बार फिर से briefly understand कर लेते हैं कि precipitation होता क्या है. What is a precipitate? So let's understand what is a precipitate. इस फिगर को ध्यान से देखो, जो उसमें पहली टेस्ट ट्यूब है, दिस वन, इट्स अ क्लियर सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर है, हर तरफ सेम है, तो दिस इज अ सॉल्यूशन. ये अगर आप देखोगे तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सस्पेंशन. इसमें पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड हैं. राइट? And this third test tube, if you look at it, it's a precipitate. Precipitate क्यों? क्योंकि नीचे ये जो कंपाउंड है, ये ब्लैक कलर का जो कंपाउंड दिखा है, ये इनसॉल्युबल था. इस जो भी ये सॉल्वेंट था, ये जो भी ये लिक्विड है, इसमें ये इनसॉल्युबल था, बिकॉज ऑफ विच इट हैज सेटल्ड डाउन. तो दिस इज अ प्रेसिपिटेट. जैसे अगर मैं पानी के अंदर सैंड डाल देता हूं, तो sand will not dissolve in water, it will settle down. So that is precipitate. Okay? Clear what is a precipitate? Insoluble compound is a precipitate. So reactions which involve formation of a precipitate or formation of an insoluble compound
are known as precipitation reaction. So what is a precipitation reaction? Reaction in which precipitate or an insoluble substance is formed are called precipitation reaction. Very simple. Let's look at an example of precipitation reaction. And the example is one which you have already studied before. That is barium chloride and sodium sulfate. Remember, when we were discussing double displacement reaction, we had studied this particular example. Now, when barium chloride reacts with sodium sulfate solution, a white precipitate of barium sulfate is formed. So, therefore, it's an example of precipitation reaction. It's still a double displacement reaction, but a double displacement reaction can also be a precipitation reaction, right? Now, ये जो precipitate बन रहा है इस केस में barium sulfate का, that's a जो compound बन रहा है barium sulfate का, that's a white precipitate. It's insoluble in water. Okay. So I will not explain this particular reaction in further detail because we already covered this thing. Now remember that lot of these double displacement reaction are also precipitation reaction. Not all, but lot of them are precipitation reaction. Okay. Now we will take a look at another example. The second example of precipitation reaction is the reaction between lead nitrate and potassium iodide. And this reaction leads to the formation of a yellow colored precipitate. Let's look at the reaction. A solution of lead nitrate and potassium iodide undergo double displacement reaction to form a yellow precipitate of lead iodide along with potassium nitrate. Now, potassium nitrate is soluble in water, therefore, it does not form a precipitate, whereas lead iodide is insoluble in water, therefore, a yellow precipitate is formed. Now, this is again an example of double displacement reaction, where lead is displacing potassium and potassium is taking the place of lead. So, as I told you in the previous example, most of these double displacement reaction or most of these precipitation reactions are actually double displacement reaction. Now, this reaction is also very important from examination point of view. So, this brings us to the end of the second lecture on chemical reactions and equation. So, in today's lecture, we initially looked at displacement and double displacement reactions and also looked at few examples for these two categories of reaction. Next, we looked at classification of reaction based on energy change and discussed exothermic and endothermic reactions. We classified certain real life processes into exothermic and endothermic. And we concluded by looking at precipitation reactions. Now, most of the reactions which have been covered in the two lectures so far are all extremely important. So, I advise you to go through these two lectures carefully and try to understand the concept behind these reactions. In case you encounter any difficulties or you're finding any problem or something is not clear to you, please feel free to message me and I'll get back to you. In the next lecture, we will look at oxidation and reduction reaction and few applications of oxidation and reduction in real life. And that will conclude this chapter on chemical reactions and equation. Hopefully, you are enjoying this series of lecture. So keep studying and all the best. Thank you.